morning, everybody. This is Lawsico's Daily News Analysis. Today is 4 June 2020. The topics that we will be covering for today are: first, 7 to 11. In this article, the author talks about G7 and how in US there's a proposal to expand it to G11. Secondly, we will talk about India's parliament is missing in action. This is a article about how parliament should be functioning and how often the meetings of the parliament should be taking place. Thirdly, we will also talk about inner line permit and how inner line permit and CAA are related and the Supreme Court's recent decision about it. So the first article, which is titled 7 to 11. This is about G7, that is a group of nations which is officially called G7. तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि G7 एक्चुअली में है क्या. So G7 is basically an international intergovernment economic organization. 1975 में बना था ये ऑर्गेनाइजेशन जब उस समय के सबसे रिच कंट्रीज साथ में आए थे, and then they formed this organization to form cooperations and to take decisions with respect to international scenario in economics and the global economy as such. So there are 7 countries which also today, in the times of today also, constitute 58% of the global net worth. So even now, these countries are very rich. Together, they form a group of some of the richest nations of the world. अब ये countries है कौन-कौन से? इन countries में Canada है, France, Germany, Italy, Japan, UK and US. These are the countries that are part of G7 and then they form this group of powerful 7 nations. अब इसके बारे में controversy क्या है जो अभी recently erupt हुई है? Basically, United States के जो president है, Donald Trump, he made a statement very recently and he said that G7 has become outdated. मतलब उन्होंने ये बोला कि G7 जो 7 देशों का समूह है ये outdated हो गया है and then there's a need to expand it and to make it G11. So according to Donald Trump, G7 7 countries को बढ़ा के G11 बना देना चाहिए. मतलब इनमें 4 देशों को और ऐड करना चाहिए. उन्होंने ये भी बोला कि ये 4 देश कौन से होंगे. According to him, these 4 countries should be India, Russia, South Korea as well as Australia. However, this is just a proposal, but for India, this is a big statement. Why? Because G7, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बहुत ही पावरफुल कंट्रीज का समूह है. अगर इंडिया को उसका पार्ट बनाने का इवन प्रपोजल भी दिया जा रहा है, that is a very big decision. If India becomes a part of this group of nations, it will give a very big platform to India to express its concerns and to express its desires with respect to international scenario. G7 की meetings होती है yearly and वैसे तो इन meetings में इंडिया को as a guest usually बुलाया जाता है. However, if India becomes a member, it will get a platform to speak and express its concerns on a yearly basis. And economics and finance के areas में इंडिया को अपने concerns express करने को मिलेगा जिससे ऐसे decisions लिए जा सकते हैं international level पे जो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं. Which is why if India becomes a member of this group, which is just a proposal as of now in a random statement made by Donald Trump, this will be a very big thing. However, changing composition of this group will not be an easy task. अभी तो ओनली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि G7 को बढ़ा के G11 बना देना चाहिए, लेकिन कोई ऑफिशियल डिसीजन लेने से पहले जो भी G7 के मेंबर कंट्रीज है उनका कंसेंट लिया जाएगा. जैसा अभी बात हुई है हमारी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK and US. All these countries have to together take a decision whether they want to add more countries to it. So, which is why ये decision final नहीं है, लेकिन इंडिया इसमें मेंबर बन सकता है और ये आगे देखने वाली बात है कि इस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं. One more issue that arises out of this is that China is left out. When Donald Trump said that it should be expanded and it should be converted into a G11,
he did not take the name of China. And इससे कंसर्न यह निकल के आ रहा है कि इवन चाइना वाज यूज्ड टू बी इनवाइटेड टू G7 मीटिंग्स. जब G7 मीटिंग्स होती है और अब यूएस में होने वाली है इस साल की G7 मीट, तो इससे पहले वाली G7 मीटिंग्स में चाइना को भी बुलाया जाता था एज अ गेस्ट. फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स जो एक समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इस समूह के पार्ट को सिंस चाइना भी इसमें पार्ट है, इसको एक बार ब्रिक्स मीटिंग में बुलाया गया था. तो चाइना इज नॉट न्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ G7. However, Donald Trump didn't name China when he said कि इस ग्रुप को G11 बना दिया जाएगा. Now इससे क्लियरली हाईलाइट हो रहा है कि यूएस एंड चाइना के बीच में एक टेंशन चल रही है, which is both financial, trade, economy, as well as recent COVID crisis. इस सब के बारे में यूएस एंड चाइना के बीच में एक टेंशन चल रही है और इससे एक कोल्ड वॉर के भी सिग्नल मिल रहे हैं. And this is something that is a cause of worry for the entire world. This whole tension between US and China, and this statement has hinted towards it. And but for India, this is a matter to be proud of if steps in these directions are taken. The second article for today was about Indian Parliament and how COVID-19 is affecting the functioning of Indian Parliament. तो आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इंडियन पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फंक्शंस क्या होते हैं. व्हाई इज इट नेसेसरी टू फंक्शन द पार्लियामेंट, टू टेक पार्लियामेंट्री मीटिंग्स रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? So basically parliament acts as a check and challenges the role of government, the actions taken by the government. जो भी एक्शन सरकार लेती है, पार्लियामेंट में जो मीटिंग्स होती हैं वो एक्शंस डिस्कस किए जाते हैं. से फॉर एग्जांपल कोई लॉ पास हुआ, कोई पॉलिसी पास हुई, पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है गवर्नमेंट के एक्शंस को, सो दैट फ्यूचर में कोई भी एक्शन लिया जाए इट टर्न्स आउट टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन. However, these parliamentary meetings are not taking place. Recently, अभी 2 महीने हो गए हैं जब से पार्लियामेंट नहीं मिली है. However, इसका एक रीजन है कि we are all suffering from this great problem called COVID-19. But the fact is fact, and Indian Parliament meeting have not taken place since the past 2 months, and therefore it has been difficult to keep a check on government action. Now, this is one problem with the Parliament not taking place. Now, secondly, पार्लियामेंट का रोल यह भी होता है कि नेशनली जो लॉज बनती है ये पार्लियामेंट के सत्र से होती हुई जाती है. पहले लोकसभा में पास होती है, फिर राज्यसभा में पास होती है. Now, since parliamentary sessions are not taking place, these laws are not being able to pass. अब इससे करंट सिनेरियो में जो प्रॉब्लम आ रही है वो यह है कि कोविड-19 से रिलेटेड गवर्नमेंट को काफी डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं. Regulatory decisions, business related decisions. Now the government is not being able to take these decisions through the process, through the regular parliamentary process, that is Lok Sabha, Rajya Sabha, and then President's Act. Instead of that, it is taking recourse to existing legislation. For example, recently also a change was made, a policy was passed under the Disaster Management Act 2000. तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक रूल था जिसके अंदर गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्कोप मिला और उन्होंने एक पॉलिसी पास कर दी विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19. हाउएवर, ये सारी जो एग्जिस्टिंग लॉज है, दीज आर नॉट ब्रॉड इनफ टू डील विद द पैंडेमिक सिचुएशन, एंड इसीलिए एक नई लॉ पास करने की जरूरत है जो ब्रॉड हो, जिसके अंदर जो सोच समझ के बनाई हो एक पैंडेमिक से डील करने के लिए. बट पार्लियामेंट क्योंकि सेशन में नहीं है, इसलिए इस तरह की नई लॉ बनाना भी काफी मुश्किल हो रहा है. तीसरी कंसर्न की बात यह भी है कि जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सरकारी खर्चे जो होते हैं, वो भी पार्लियामेंट की स्क्रूटनी से होते हुए जाते हैं. अगेन, दिस इज द मैटर ऑफ पुटिंग अ चेक ऑन द गवर्नमेंट. नाउ सिंस द पार्लियामेंट इज नॉट इन प्लेस, इज नॉट फंक्शनिंग, गवर्नमेंट के खर्चों पर भी नजर नहीं रखी जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा. अब वी ऑल नो दैट देयर इज अ फाइनेंशियल stringency in the country right now because a lot of expenses are required to be made,
However, the government is not able to keep a check on them, and parliament is also not functioning, which is creating a problem. Then, when elections happen, the fourth issue that arises is when elections happen, people choose their MPs and MLAs. The purpose for this is लोग अपने लिए अपने MLA और MP इसलिए चुनते हैं जिससे कि वो MLAs और MP आगे जाके उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाए. अगर पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं कर रही है तो वो MLAs और MPs अपने जो भी एरिया है वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे डेमोक्रेसी का जो रूट स्ट्रक्चर है और चलने का तरीका जो है डेमोक्रेसी का वो भी वीकेंड होता जा रहा है. These are all the reasons why it's very important that a regular parliament functions. And ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में अभी तक COVID-19 के चलते पार्लियामेंट फंक्शंस नहीं कर रहे हैं. Various countries have started taking parliamentary sessions. For example, Canada, Britain, France, Italy, Argentina. In all these countries, parliaments are taking place, whether it is virtually or through physical distancing. कोई ना कोई तरीका वो लोग अपना रहे हैं effective governance functioning के लिए. इंडिया को भी इस पे ध्यान देना होगा, जरूरत है इस बात पे ध्यान देने की. अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं. So Rule 267 of Lok Sabha rules says that meetings have to be held in the Parliament building. तो ये हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है. अब लोकसभा के रूल्स ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर जो होते हैं उनके पास पावर होती है टू चेंज द वेन्यू ऑफ द पार्लियामेंट्री मीटिंग. तो स्पीकर चेंज कर सकते हैं वेन्यू, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, और वो जो मेन प्रॉब्लम है वो यह है कि जो पार्लियामेंट मीटिंग्स होती हैं they have to be in private. There have to be an element of security and secrecy in the matters of parliamentary meetings. Now this is the main issue that has been suffered. Confidentiality नहीं secure हो पा रही है. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, it's difficult to maintain the confidentiality that the parliamentary meeting requires, which is the main reason that parliamentary meetings are not taking place in India. अब ये टेक्निकल कंसिडरेशंस अगर हम माइंड में रखें तो फिर अग्रीड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम कि पार्लियामेंट्री मीटिंग्स नहीं देख हो पा रही है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से. लेकिन ऐसा ऑथर का मानना है कि ये इशू रिजॉल्व हो सकते हैं अगर पार्लियामेंटेरियंस चाहे तो देयर एंटायर रोल इज दैट दे वर्क फॉर द पीपल. जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्हें हमने चुनाव के द्वारा चूज किया है, उनकी प्राइमरी ड्यूटी, उनका प्राइमरी दायित्व ही यही है कि वो लोगों की परेशानियों को सुने और उनका सुझाव निकाले. यह टेक्निकल कंसिडरेशंस रिजॉल्व होनी चाहिए जल्द से जल्द, एंड पार्लियामेंट्री मीटिंग शुड टेक प्लेस सो दैट द होल प्रोसीजर वेयर पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट एक्शंस कैन टेक प्लेस, एंड हमारी सरकारी व्यवस्था फिर से एक सुचारू रूप से चल पाए. Third article on the topic for today is Inner Line Permit and Citizenship Amendment Act. तो Citizenship Amendment Act 2019 में पास हुआ था. उसमें काफी उसके बाद प्रोटेस्ट हुए थे देश भर में, और उसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इनर लाइन परमिट क्या है. ILP भी बोलते हैं इसे, और बेसिकली इनर लाइन परमिट ब्रिटिश राज में इनिशिएट हुआ था, और उसका कारण यह था कि ब्रिटिशर्स काफी रेकलेसली एक्सपैंड कर रहे थे अपनी एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों में प्रॉब्लम आ रही थी. सो अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरिया की ही बात की जाए तो वहाँ पे कुछ जंगल का एरिया है which is inhabited by certain tribal people. तो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो वो फॉरेस्ट एरियाज में रहती हैं, लेकिन उन एरियाज में नॉर्मल ब्रिटिशर्स घुसते थे, जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज को काफी प्रॉब्लम होती थी. उनके लाइवलीहुड एंड जीने के तरीकों में परेशानियां और बाधाएं आती थी. उस टाइम पे एक अग्रीमेंट एंटर किया गया जिसमें यह कहा गया था कि एक बाउंड्री बनाई दी जाएगी ट्राइबल एरियाज के लिए, जिसके बियॉन्ड नॉर्मल लोगों को घुसने की परमिशन नहीं होगी, और वो खाली एक परमिट लेके ही उस एरिया में घुस सकते हैं.
Now this continued even after the Britishers left India, and this came to be known as inner line permit. तो इसका अभी भी बेसिक रूल यही है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरियाज हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, नागालैंड, मणिपुर के साइड में, and these areas have been marked by inner line permit, and any citizen of India who has to enter these tribal areas has to take a permit before entering, so that lifestyle and livelihood of tribal people inhabiting in those areas can be preserved. उन ट्राइबल लोगों को जो क्षेत्र में रह रहे हैं उनके जीवन के तरीके में उन्हें कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए, इसलिए यह सिस्टम को बनाया गया। अब इसका सीएए से आखिर क्या रिलेशन है? तो सीएए पिछले साल हमारी सरकार ने पास किया था। एक बार एक प्राइमर देना चाहूंगी मैं सीएए के बारे में सभी को। सीएए बेसिकली यह कहता था कि अब 3 देशों में से, जो कि है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों में से कुछ रिलीजन के लोग, अब ये रिलीजन है हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन, पारसीज एंड बुद्धिस्ट, इन 6 रिलीजन के लोग अगर उन 3 देशों से आते हैं और वो रिलीजियस परसिक्यूशन से भाग के आ रहे हैं उन देशों से, तो फिर उन्हें इंडिया में सिटीजनशिप लॉ में कुछ एक्सेम्पशंस दिए जाएंगे, यानी उन्हें आसानी से सिटीजन बना दिया जाएगा कुछ और लोगों के बजाय। तो ये एग्जेम्पशन उन्हें मिल रहे थे। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, दे वर नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद दिस अमेंडमेंट, बिकॉज दिस एसेंशियली मीन्स कि उनके एरिया में जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से, उनमें से कुछ माइग्रेंट्स को आसानी से उनके एरिया में रहने की परमिशन मिल जाएगी, जो कि भी इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई हिंदू बांग्लादेश के साइड से माइग्रेंट बन के असम में आ जाता है, तो फिर उस हिंदू को एक्सेम्पशंस मिलेंगे, उसे रहने की परमिशन भी मिल सकती है। एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल वर नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी विद इट। नाउ इनर लाइन परमिट का इससे यह रिलेशन है कि सीएए के अंडर भी कुछ एक्सेम्पशंस है। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया, इसी एग्जाम्पल पे अगर हम चले, तो अगर कोई हिंदू बांग्लादेश से असम में आता है तो उसे सीएए के अंडर एग्जेम्पशन मिलेंगे और हो सकता है कि उसे एक सिटीजन बना दिया जाए थोड़ी आसानी से। इनर लाइन परमिट यह बोलता है कि सीएए इनर लाइन परमिट पे नहीं अप्लाई करेगा, यानी कि जो भी क्षेत्र इनर लाइन परमिट के अंदर फॉल करते हैं उनमें सीएए नहीं अप्लाई करेगा। तो अगर कोई हिंदू बांग्लादेश से इनर लाइन परमिट के एरिया में आ जाता है तो फिर उसे आसानी से सिटीजन नहीं बनाया जाएगा, उस पर वही रूल अप्लाई करेंगे जो दूसरे लोगों पे अप्लाई करते हैं। अब करंट कंट्रोवर्सी ये है कि इनर लाइन परमिट का जो एरिया है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया, लेकिन उसमें असम को नहीं इंक्लूड किया गया। तो असम के कुछ एरिया हैं जैसे कि कामरूप, दरंग, नौगांव, लखीमपुर, काचर, यह एरियाज इनर लाइन परमिट के अंदर नहीं इंक्लूड किए गए। अगर इंक्लूड किए जाते तो फिर सीए उन पे अप्लाई नहीं करता और माइग्रेंट्स उन एरिया में नहीं आ सकते थे। लेकिन क्योंकि यह एरियाज इनर लाइन परमिट में इंक्लूड नहीं किए गए, अब माइग्रेंट्स जो कि सीए के अंडर एग्जेम्प्टेड है वो इन एरियाज में आसानी से आ सकते हैं। और यही प्रॉब्लम है जो इस पिटिशन में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें रेज हुई कि यह प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर है, यह ऑर्डर एक वैलिड ऑर्डर नहीं है, बिकॉज दिस एक्सक्लूड एरियाज ऑफ असम फ्रॉम इनर लाइन परमिट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर, यह पिटिशन रिजेक्ट कर दी, एंड इट सेड दैट वी नीड टू डिस्कस द थिंग्स एंड द मैटर विद द गवर्नमेंट। हाउएवर, दिस इज the main grievance of the people of Assam, that more migrants will come into their areas and they are not even being protected by the inner line permit as other states of Northeast. We will have to see what the Supreme Court further says after talking to the government. और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो भी डिस्कशन होता है, जो भी सरकार बोलती है कोर्ट के सामने आकर, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि सुप्रीम कि असम के जो एरियाज है जो एक्सक्लूडेड है ये इनर लाइन परमिट में इंक्लूड होंगे कि नहीं। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। दीज आर ऑल द इश्यूज जो कंटिन्यू होते रहेंगे और इन पे अभी एंड नहीं लगा है, यह तीनों इशू चलते रहेंगे एंड इस पे
डिस्कशन करते रहने की जरूरत है, and we will keep doing so for your benefit. The quiz question for today is, which country is not a member of G7? France, Japan, China, Italy. Take your time and answer. Thank you.